So, students, today we will start with our chapter genetics. Okay, in genetics, first of all, we already discussed about important terms and definitions such as allele, character, chromosomes. Okay, crisscross inheritance, cloning, dominant character, dihybrid cross, dihybrid ratio, F1 generation, F2 generation, genetics, genome, genotype, heredity, homologous chromosomes, homozygous, heterozygous. Okay. These things we cleared in the last few weeks, and in the chapter of cell division, I hope you understand it, and many things are covered in it. Okay, so now we will study about the Mendel laws of inheritance. Okay, so first of all, briefly we will read about the father of genetics. As you know, Gregor John Mendel. Okay, Gregor John Mendel is known as the father of genetics. Its experiments and explanation are summarized in three laws. Okay, which is known as Mendel's law of inheritance. He recognized a factor in gametes which was responsible for the appearance of a particular character in the offspring. ठीक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी कैरेक्टर पास ऑन होते हैं, ठीक है, उसको बताने के लिए उसने कहा था कि एक फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जो गैमीट्स में मिलता है, जिस फैक्टर को हम अब जीन्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्रैकर जॉन मेंडल का आपको इंट्रोडक्शन वगैरह तो ब्रीफली आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। वो एक प्रीस्ट थे और उन्होंने मेंडल ने पी प्लांट को चुना था, ठीक है। इसके बारे में भी अभी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे आगे। So before talking about this, we will discuss about something chromosomes, as we discussed about their structure in the last week also. So each chromosome consists of two chromatids joined at a point called centromere. Okay, suppose this is a chromosome, okay, structure, and this is the point which is known as centromere. Okay, and the number of chromosomes fixed in a species. When we talk about a species, the number of chromosomes will remain fixed. In humans, there are 46 chromosomes. Okay, 23 of chromosomes, 46 total, and there are 23 pairs. Okay, so when we talk about their difference, okay, in 22 pairs, the 23 pairs, 22 are pairs are called as autosomes, and other rest one are called as sex chromosomes or allosome. So these are identical chromosomes. Okay, when we talk about autosomes, these are identical chromosomes. In humans, there are 22 pairs of chromosomes, sorry, autosomes, and uh, when we talk about the sex chromosome or the allosome, these determine the sex of a child. In humans, there is one pair of sex chromosomes. Female zygote has XX and male zygote has XY chromosomes. Okay, so we will already discuss about them in detail. Okay, so now we will move to the Mendel again. That Mendel selected garden pea, okay, or Pisum sativum. Sometimes question also asked that Mendel selected sweet pea for his experiment. True or false? So it is false. Okay. Whenever garden pea is written, it means it is right. So garden pea, Mendel selected garden pea, and its botanical name is Pisum sativum. Okay, so sometime also ask that why he select only pea plant, only garden pea plant, and the reasons are there. First of all, pea plant has bisexual flower. Bisexual flower means the fertilization process or the pollination process will be occur very easily. Okay, if the flower is or the plant is bisexual, then many varieties were available in alternative forms, so its many varieties also found. Okay, and it is an annual plant. So it is an annual plant means it can
complete its life cycle in within 1 year. ओके, एनुअल प्लांट, बाइनल प्लांट, पेरेनियल प्लांट आप समझते होंगे। मतलब एनुअल में क्या होगा, जो ऐसा प्लांट जो सीड से लेकर जो है फिर से नया सीड बनाने तक की प्रोसेस जो है वो 1 साल में ही कर लेगा। ठीक है, जो 2 में करता है उसको बाइनल बोलते हैं, और 2 से ज़्यादा समय जिनको लगता है 2 ईयर्स से ज़्यादा, तो उनको हम बोलते हैं पेरेनियल प्लांट। ओके, सो इट इज़ एन एनुअल प्लांट, सो इट इज़ easy to take care of it, and you can say that it is very easy for the Mendel to see the changes in that plant because it completes its life cycle only within 1 year. Next is the varieties were in pure forms that bred true. Okay, and their varieties are also pure form. It was easily available. Okay, availability also very much easy. This is the big thing. And it has a short life cycle, that is only 1 year, and handling the plants was easily, okay, because you know that pea plant are very short, so we can easily handle them also. Large number of offsprings were produced in a single generation. Okay, so the offspring होती है इसकी पी प्लांट की, वो भी बहुत ज़्यादा जो है एक बार में प्रोड्यूस होती हैं। इट कुड बी इजिली आर्टिफिशियली पॉलिनेटेड एंड हाइब्रिड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आर्टिफिशियली वेर फर्टाइल। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली पॉलिनेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और जो भी हाइब्रिड प्रोड्यूस होंगे वो फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो ये रीजंस थे कि मेंडल ने क्यों चुना पी प्लांट को ही। नेक्स्ट थिंग इसमें आप देखना है आपको कि ही स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग features of garden tea. Okay, so first character is flower color. Okay, first character he took flower color, and its dominant is purple and white. Okay, as I told you before also that what is dominant and what is recessive, that the character which appear in the generation. ठीक है, मान लो एक फ्लावर है जिसमें आपको इसमें दो तरह के फ्लावर दिख रहे हैं ना, एक तो डोमिनेंट है रेसेसिव में पर्पल और वाइट। ठीक है, पर्पल कहाँ पे होगा, अगर जैसे कोई फूल आप कह रहे हैं कि पर्पल कलर का है, तो इसका मतलब उसमें जो कैरेक्टर है डोमिनेंट वो पर्पल है। ओके, पर्पल कलर डोमिनेंट है, और वो फ्लावर वाइट भी हो सकता है, लेकिन उसमें ये रेसेसिव हो जाता है, छुप जाता है। ठीक है, वाइट जो कलर है वो छुप जाएगा। ठीक है, वो जो अपीयर नहीं हो पाएगा उस जनरेशन में, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेसेसिव। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट हाइट। ओके, ऐसे ही प्लांट हाइट में भी होगा टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, टॉल प्लांट, अगर हम कह रहे हैं कोई प्लांट टॉल है तो उसका जो ड्वार्फ करेक्टर है वो रिसेसिव है। ठीक है, एंड सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, देन पॉट कलर ग्रीन एंड येलो, सीड कलर येलो एंड ग्रीन, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सिलरी और टर्मिनल। ओके, देन लास्ट शेप ऑफ पॉट एंड इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो फुला होगा या संकुचित होगा। तो इस तरह से जो है इसने 7 कैरेक्टर्स लिए हैं। कभी पूछा जाता है कि कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, तो 7 पेयर्स थे। ओके, नाउ वी मूव टू द लॉस। इससे पहले थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस देख लो कि इम्पोर्टेंस क्या है मेंडल लॉस के। सो डिजायर कैरेक्टर कैन बी इंट्रोड्यूस बाय हाइब्रिडेशन। ओके, हाइब्रिडेशन से ही हम जो है डिजायर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड प्लांट क्वालिटीज कैन बी इम्प्रूव्ड, और प्लांट की क्वालिटी भी जो है इम्प्रूव करी जा सकती है। नेक्स्ट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर जैसे टॉल है या ड्वार्फ है, आप उसको फिजिकली बाहर से देखकर ही बता सकते हैं। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ जनरेशन कैन आल्सो बी प्रेडिक्टेड, तो इनके जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी दोनों हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 लॉस। 3 लॉस क्या है मेंडल के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, and third is law of independent assortment. Now we will be read about them in detail. First of all, we talk about the monohybrid cross. Okay, monohybrid cross. Okay, so monohybrid cross means when only one character, okay, one pair of contrasting character, okay, is you can say that uh, whenever they crossed with each other। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर को जब हम जो है ध्यान रखेंगे इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो इसको देखना किस तरह से होता है। मान लो, ठीक है,
पेरेंट्स में, ठीक है, पेरेंट्स पी से इसको दिखाते हैं, पेरेंट्स लिख सकते हो या पी, ठीक है। जो टॉल प्लांट है, जैसे इसको समझना, आपकी बुक में भी दिया होगा, टॉल है, ठीक है, और एक करेक्टर है ड्वार्फ, ठीक है, ठीक है। दो पेरेंट्स हैं, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो इसमें जो टॉल है उसको हम कैपिटल टी से दिखाते हैं और ड्वार्फ को स्मॉल टी से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गए, इनके गैमीट्स हो गए, ठीक है, ये हो गए पेरेंट्स, ये हो गए गैमीट्स, ठीक है। तो टॉल का गैमीट क्या है, डबल टी, एंड ड्वार्फ का है स्मॉल डबल टी, ओके। सो टॉल करेक्टर और ड्वार्फ करेक्टर। अब इसमें अगर हम क्रॉस कराएं, ठीक है, तो जनरेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन क्या बनेगी, एक इससे मल्टीप्लाई कीजिए टी टी, ठीक है। अब पहले एक को हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, टी टी, ऐसे ही इसको भी टी टी, इसको भी टी टी, okay, yes, so you can see that t t t t, ठीक है, when we cross them टी टी, इस तरह से जो है ये बन जाएगा, ठीक है। एक को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से देखो कि F1 जो जनरेशन आ गई, ठीक है, F1 जनरेशन क्या आ गई, टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, F1 जनरेशन को देखना, ठीक है। इसको एक बार और समझ लो कि ये क्या है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हो गए टॉल, ठीक है, और ड्वार्फ, ठीक है, और ये इनके गैमीट्स हैं, ठीक है, गैमीट्स क्या हैं, टी टी, ठीक है, और ये स्मॉल टी टी। तो इनकी जब हम क्रॉस कराया तो क्या बना यहाँ पे, टी टी, F1 जनरेशन इसको हम कहेंगे, F1 जनरेशन बनी टी और स्मॉल टी। अब इसको फिर से सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं टी टी, ठीक है, और इस तरह से इसको हम बना लेंगे टी टी, ठीक है। सेल्फ क्रॉस मीन्स कि इसको जो टी टी हमारा जनरेशन आया था, F1 जनरेशन आया था, इसमें गैमीट्स बने थे, इसको देखो एक यहाँ हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, इस साइड हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, फर्स्ट को फर्स्ट से करो मल्टीप्लाई टी टी, फिर इसी को दूसरे से भी टी टी। कभी भी ध्यान रखना जब आप एक गैमीट को क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों के साथ करेंगे, जैसे कैपिटल टी को हमने पहले वाले कैपिटल से किया, फिर स्मॉल टी से, अब ऐसे ही स्मॉल टी को करेंगे तो टी टी, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टी स्मॉल टी। सो if you see there in certain genotype the tentative concentration of an organization, okay, that height of a plant capital T और टी और टी, ठीक है। जब कैपिटल टी आए, दोनों कैपिटल टी हैं, इनको भी हम टॉल कहेंगे, और कैपिटल टी और स्मॉल टी को भी हम टॉल प्लांट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो रेसेसिव हो जाएगा, ठीक है, जो दिखेगा नहीं जनरेशन में। और यहाँ पे जो कम्प्लीटेड ड्वार्फ है वो क्या है, केवल टी टी है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, अब इसमें क्या समझ सकते हैं कि कितने यहाँ पे टॉल हो जाएंगे, टॉल जो कम्प्लीटली है 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आएगा, 3:1, क्योंकि देयर इज 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको समझना होगा, ठीक है। और अगर इसका हम जीनोटाइप दिखा लें, ठीक है, ये तो हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि बाहर से देखने पे जो लग रहा है आपको कि 3 टॉल लग रहे हैं और एक ड्वार्फ लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो 1:1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 क्या है, कंप्लीट टॉल है, ठीक है, और 2 क्या है, हाइब्रिड टॉल है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्मॉल टी भी है, ठीक है, रिसेसिव, और एक कम्प्लीटली ड्वार्फ है, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1 एंड दिस इज 1:1, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इस तरह से होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मतलब क्या होगा, ठीक है, पहले समझ लो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं किसको, ठीक है। इट इज द क्रॉस which is carried out by taking two pair of contrastive character, okay, at a time, एक समय में जब हम दो कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर को लेंगे। इससे पहले हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा, हमने क्या लिया था, केवल प्लांट हाइट ली थी, ठीक है, इसको समझना, प्लांट हाइट ली थी। अब हम क्या ले सकते हैं इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, एक करेक्टर लेते हैं पेरेंट्स का, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, एक करेक्टर ले सकते हैं जैसे टॉल, ठीक है, पेरेंट्स में आ जाएगा टॉल और रेड, ठीक है, एक करेक्टर हो गया टॉल, एक करेक्टर हो गया इनका कलर का, ठीक है, टॉल है
प्लांट और रेड कलर के फ्लावर उसमें है। दूसरा करेक्टर हो जाएगा ड्वार्फ, ठीक है, डी से इसमें लिखता हूँ स्पेस से ले, ड्वार्फ और वाइट, ठीक है, और डब्ल्यू लिख रहा हूँ। तो दो करेक्टर हम ले रहे हैं तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें समझना कि जो गैमीट्स बन के आ जाएंगे, ठीक है, इसके गैमीट्स क्या हो जाएंगे, टॉल के लिए कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी, और रेड के लिए होते हैं आर आर, ठीक है, कैपिटल आर आर। अब ड्वार्फ में तो स्मॉल टी, और वाइट के लिए होते हैं स्मॉल आर आर, ठीक है। अब इनके गैमीट्स क्या निकल के आ जाएंगे, ठीक है, इसमें से गैमीट्स क्या बनेंगे इनके, ठीक है, ये तो हो गए प्लांट, ये हो गया। अब इनके गैमीट्स क्या बनेंगे, इसका टी और इसका आर, ठीक है, और इनके गैमीट क्या बनेंगे, टी और आर, ठीक है। अब F1 जनरेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, F1 जनरेशन में देखना, ठीक है, यहाँ तक का इसको समझ लेना पहले। गैमीट्स गैमीट्स क्या बन के आ गए, एक टी, एक आर, एक स्मॉल टी, एक स्मॉल आर, ठीक है। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, क्रॉस इट, ठीक है, क्रॉस करेंगे तो टी टी, फिर आर आर, ठीक है, टी टी, ठीक है, टी, सॉरी सॉरी, हाँ, टी टी, टी आर, ठीक है, फिर ऐसे ही आर टी, फिर इसमें आर आर। तो इस तरह से जो है इसमें गैमीट बनेंगे, ठीक है। लेकिन इनको जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाएगा, आपका F1 जनरेशन में क्या आ जाएंगे यहाँ पे, F1 जनरेशन जो बनेगी हमारी टी टी और आर आर, जब हम इनका क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्रॉस इसको समझ लो, यहाँ से हमने कैसे निकाला, टी आर, ठीक है। तो जो सिंपल क्रॉस क्या है इसका इससे, ठीक है, इसका इससे, तो क्या जनरेशन बन के आ गई हमारी टी टी आर आर, F1 जनरेशन ये है, ठीक है। अब F1 जनरेशन को हमने क्या करना है, फिर से सेल्फ क्रॉस कराना है, ठीक है, F1 जनरेशन में। अब F2 जनरेशन के लिए फिर क्या होगा, ठीक है, तो पहले F1 जनरेशन को निकाल लेते हैं, टी टी आर आर है, ठीक है। तो इसमें कैसे गैमेट्स बन जाएंगे, टी आर, ठीक है, फिर इसका टी स्मॉल आर, फिर दूसरा टी के स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। इस तरह से इसके गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में फिर हम इनको सेल्फ क्रॉस करा देंगे, ठीक है। तो गैमेट्स क्या बने थे हमारे, टी आर स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी लिख देंगे, इन्हीं गैमेट्स को कि हमने सेल्फ क्रॉस कराना है, टी आर, ठीक है, और टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी आर, एंड लास्ट स्मॉल टी स्मॉल आर, ओके। यहाँ पे समझना ध्यान से, ठीक है, तुमने इसको समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो इस तरह से जो आपको ये देखना है। अब इनका हम करा देंगे क्रॉसिंग, ठीक है। तो पहले इसका इससे कराएंगे, ठीक है, टी टी आर आर, टी टी और आर का आर, ठीक हो गया। फिर इसी को, इस वाले का पहले इन चारों से क्रॉस कराएंगे, इसको समझना, पहली लाइन जो बनेगी हमारी, इनका इन चारों से क्रॉस होगा, फिर इसका इन चारों से, फिर इसका, फिर लास्ट वाले का, ठीक है, ऐसे बनता है। तो टी आर, अब इसमें इसका क्रॉस करेंगे टी टी और कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा, टी टी आर आर and last tt r and small r, okay, like this you have to make. Then you can see next one, double t r r, okay, double t small r t t आर आर, ओके। अकॉर्डिंगली जैसे भी यहाँ पर आपको गैमेट्स मिल रहे हैं उसी के हिसाब से लिख लेना है, बहुत इजी है, देख रहे हो, टी से टी, टी कैपिटल टी लिख दिया, वहां से स्मॉल टी लिख दिया, यहाँ का कैपिटल स्मॉल आर, वहां का भी स्मॉल आर, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे भी इसको बना सकते हैं चारों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखने लायक होगा, फिर आप इनको काउंट करके इजीली इनके रेशियो जो है लिख सकते हैं। इसमें मेनली जो आपका रेशियो बनेगा, ठीक है, वो बन जाता है आपका 9331, ओके। फिनोटिपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो 9331, ओके।
एंड जो जीनोटाइप्स बनेगा, जीनोटाइप्स इसमें बनता है, जीनोटाइप्स बनता है 1:2:1, :2:4:2:1:2:1। ठीक है, जब आप इसको काउंट करोगे तो इस तरह से इसमें जीनोटाइप बनेगा, जो 9 जीनोटाइप्स बनेंगे। ठीक है, 9 जीनोटाइप्स बनते हैं और 4 फिनोटाइप। ठीक है, 9:3:3:1। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायब्रिड क्रॉस। ओके, सो इन चीजों को जब हमने देखा तो फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तो इसमें क्या होगा, हमने जब देखा था कि 1:1 जो टॉल था ड्वार्फ पे डोमिनेंट था। ठीक है, तो इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस से समझते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों कहा गया इसको, क्योंकि out of a pair of contrasting characters or alleles present together in an offspring, one dominates over the other. ओके, एक करेक्टर क्या है दूसरे करेक्टर को डोमिनेट करेगा, जैसे कि हाइट है। ठीक है, करेक्टर है हाइट का। ठीक है, तो जहाँ पर हमने देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो वहां पर देखा था कि जो हाइट है, हाइट ऑफ टॉल प्लांट इज डोमिनेंट। ठीक है, इसमें जो करेक्टर है टॉलनेस जो है वो इसकी ड्वार्फनेस को क्या कर रही है, डोमिनेंस कर रही है। ठीक है, एक कैरेक्टर जो है इसका डोमिनेंस कर रहा है हाइट में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, और सेग्रीगेशन की बात करें, जब हमने डायब्रिड क्रॉस देखा था, ठीक है, तो द कंट्रास्टिंग फैक्टर और एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो द कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स or characters separate during gamete formation. At the time of zygote formation, the gametes combine randomly, but alleles or characters do not blend and separate during gamete formation. ठीक है, तो जब भी यहाँ पे हमने देखा था कि जो उनके अपने अपने कैरेक्टर क्या होंगे, एक साथ अलग हो जाएंगे लास्ट में। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, हाइट का कैरेक्टर अपना दिखाएगा, जो उसका फ्लावर कलर है वो अलग कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, तो जाएगा टाइम पर गैमीट जो है कंबाइन तो होते हैं रेंडमली, बट एलील्स जो उनके एलीज होंगे और कैरेक्टर होंगे वो जो है सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ओके, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, और थर्ड लॉ की अगर बात करें, ठीक है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ ईच कॉन्टेक्स्टिक कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कॉन्टेक्स्टिक कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर। ओके, सो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक में बताऊंगा इसको। तो अभी के लिए ये समझ लो कि एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉज। ठीक है, अब कुछ जो मेंडल के लॉ हैं इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, जैसे पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकेंड इज लिंकेज, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। एंड सी इज मल्टीपल। वैसे एग्जाम्स में उतना आपसे पूछा नहीं आएगा इसके बारे में, बट फिर भी मल्टीपल। एल इज, इससे आगे की क्लासेस के लिए आपके लिए सही रहेगा, पढ़ेंगे तो। एंड लास्ट है जीन इंटरेक्शन। सो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं मेंडल के लॉ के, जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं।